یہ MC1 چارسدہ ڈسٹرکٹ چارسدہ تحصیل چارسدہ میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. اس پروجیکٹ کا نام CMAM ہے، کمیونٹی مینجمنٹ آف ایکیوٹ مال نیوٹریشن. حاملہ خواتین اور کم عمر بچوں کی غذائی خوراک کی کمی جو ہے اس کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے. یہ پروجیکٹ 6 ماہ کے لیے ہے اور اس کے کل 4 پارٹنر ہیں. میں آج کے مہمان خصوصی یونیسیف کے ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالجمیل، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ریلیف ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالعزیز ضیاء، الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر ڈاکٹر اقبال خلیل اور پرائم فاؤنڈیشن پروجیکٹ سپورٹ یونٹ کے ڈائریکٹر سعید انور صاحب کو قیامت کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہماری اس تقریب کے لیے وقت نکالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار. یعنی ایک بچہ جو اس وقت 5-6 ماہ کا ہے، اگر اس کی بنیاد اس طرح کم خوراک، کم صحت اور کم خون اور اس معیار پہ وہ بڑھے تو اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، اس کا جسم کمزور ہوگا، اس کا ذہن کمزور ہوگا اور وہ آگے جا کر عملی زندگی میں وہ مقام اور وہ سٹیٹس اور جو اس کو وہ اختیار نہیں کر سکے گا. تو الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ شروع ہے اس کے بڑے دور رس نتائج ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ رونما ہوں گے. اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ یونیسیف ڈاکٹر عبدالجمیل صاحب نے ان کی طرف سے یہاں کی جو خوراک اور فوڈ اور میڈیسن ہے یہ انہی کے تعاون سے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں لاجسٹک سپورٹ جگہ اور پوری ایک رہنمائی ان کی ہمارے ساتھ ہے. پرائم فاؤنڈیشن نے اس کے لیے رپورٹنگ، اس کے لیے ٹریننگ اور یہ پورا پروگرام انہی کے تعاون سے چل رہا ہے. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس کے لیے جو مالی تعاون ہے اور اس کی نگرانی ہے اور اس کا آغاز ہے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور ہم نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ پچھلے سال جب یہاں سیلاب آیا تھا تو یہاں کی پوری آبادی اور لوگوں کی صحت کافی متاثر ہوئی تھی. تو ہم نے پورے پاکستان میں بیمہ مرکز کی طرف سے اسی مقام کا انتخاب کیا. یہ پروجیکٹ ابتدائی طور پہ 6 ماہ کے لیے ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ یہاں کے جو سٹاف ہے، میں نے دیکھا ان کی خواتین بھی ہے، میل بھی ہے، اگر جس اخلاص سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے امید ہے یہ پروگرام اور بھی آگے بڑھتا جائے گا. ہماری ٹیموں نے گھر گھر جا کے سروے کیا اور اس سروے کے نتیجے میں انہوں نے کوئی 1890 کے قریب بچوں کو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 2000 کے قریب بچوں کو اسکرین کیا. یعنی دیکھا کہ ان میں سے کون سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے اندر شدید غذائی کمی ہے یا درمیانے درجے کی غذائی کمی ہے، تاکہ ان کو پھر رجسٹر کیا جائے اور ان کو پھر غذائی کمی پورا کرنے کے لیے جو غذائی اجزاء ہمیں یونیسیف نے دیے ہیں وہ بطور علاج ان کو دیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے حاملہ خواتین تک پہنچے، تقریباً 1500 کے قریب حاملہ خواتین تک یہ لوگ گھروں میں پہنچے اور ان میں سے 150 کے قریب خواتین کو انہوں نے اس پروگرام میں انرول کیا. تو بیسیکلی یہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے بچے اور خواتین محض غذائی کمی کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں.
तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जो है इस प्रोग्राम का दौरानिया तो बज़ाहिर मुख्तसर है, 6 महीने का है, लेकिन हमें यकीन है कि इस 6 महीने के अंदर इस यूसी के अंदर हमने जो अपने सामने टारगेट रखा है, आज इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बाद वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आइंदा 4 महीने में हम इन सब तक पहुंच पाएंगे और इंशाल्लाह ये इनके कम अज़ कम इन लोगों के अंदर जो ग़िज़ाई कमी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हामला ख़वातीन हैं, चाहे वो बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, उनके अंदर जो ग़िज़ाई कमी है वो पूरी कर दी जाएगी। जितनी भी बीमारियां हैं, बच्चों की बीमारियां, उसमें 50% से ज़्यादा बीमारियों का मौजिब और सबब ग़िज़ाई कमज़ोरी है। आप में से बहुत सारे हज़रात और ख़वातीन शायद ऐसे होंगे जिनका हमारे मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ हो। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जब कोई बच्चा किसी डॉक्टर के पास या किसी टेक्नीशियन के पास आता है तो आज तक किसी डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि इस बच्चे को नमूनिया है और इसके साथ ग़िज़ाई कमज़ोरी है, या इस बच्चे को दस्त की बीमारी है और ग़िज़ाई कमज़ोरी है, या इस बच्चे को मलेरिया है और ग़िज़ाई कमज़ोरी है। किसी डॉक्टर साहब ने आज तक ग़िज़ाई कमज़ोरी को न कमज़ोरी समझा है, न कमज़ोरी जाना है और ना तशख़ीस के अंदर उसको जगह दी है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि चाहे बच्चा जितना भी कमज़ोर है, वो हम में से किसी को कमज़ोर नज़र नहीं आता, बल्कि उसकी बीमारी हमें नज़र आती है। वो चाहे नमूनिया की शक्ल में हो, चाहे दस्तों की बीमारी की शक्ल में हो, चाहे मलेरिया की शक्ल में हो, चाहे कोई और वजह हो। लेकिन आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, हमारे बड़े कहते हैं और हम खुद भी देखते रहते हैं, दा खबर की हुई ऊँखों का कमज़ोर ज़ेमाती और दा खबरम की हुई लमतू खटुला लगी उपबा नहीं। तो जो बच्चा ग़िज़ाई कमज़ोरी का शिकार होता है, उसके ऊपर 10 और किस्म की बीमारियां बहुत तेज़ी से असरअंदाज होती हैं। उसके बाद में जो आखिरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे की इब्तिदाई 2 साल उम्र के इब्तिदाई 2 साल इंतहाई कीमती है। अगर इन 2 सालों में बच्चे की ग़िज़ाई हालत ठीक रही तो वो आगे सही तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन अगर पहले 2 सालों में उसकी ग़िज़ाइयत के ऊपर और उसकी सेहत के ऊपर सही तवज्जो नहीं दी गई, तो जो कमज़ोरी बच्चे के अंदर पहले 2 साल में आ जाती है, वही कमज़ोरी इसको बाद में भी तकलीफ़ देती रहेगी और कई मसाइल की बुनियाद बनेगी। मैं प्राइम फाउंडेशन को, बीमा को और अल-खिदमत फाउंडेशन को एक तो मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी इखलास से इस इलाके के अंदर एक छोटी सी काविश शुरू की। इस छोटी सी काविश के लिए मेरी दरख्वास्त है कि इसके जो भी आगे रिज़ल्ट्स निकलेंगे उनको आप लम्हा बलम्हा नोट करते रहें और जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं चारसद्दा के अंदर, उन तक इसके पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम उनको सेंसिटाइज करें और उनको ये बावर करा सकें कि ये मसला आपका है। हमने कोशिश की कि कुछ अरसे के लिए इस मसले को एड्रेस करें, ये उसके नताइज हैं। अब अगर आप बेहतर समझते हैं कि ये वाकई करने की चीज़ें, तो आप मेहरबानी करके अब MC2 के अंदर शुरू करें, MC3 के अंदर शुरू करें, सारे चारसदे के अंदर शुरू करें। ये तो एक ऐसा हिडन प्रॉब्लम है, हिडन हंगर है कि जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। न्यूट्रिशन उन ज़मीन का कौम जो मसला है, जिसके ज़मीन की मसली दवा खानदान जो घटा मसला है और पदे मसले को भी 50 सदी को बेस्ट हुआ तुम कानून से तरक्की करेगा अभी द टूल ना अवल چې په کوم شي باندې سټرس اچولې نو هغه هیلث دی. هیلث چې دی د دې سره چې د نورو عوامل چې کوم هغه هیلث باندې اثر وکړي او هغه کوي د هغې نه د ټولو نه امپورټنټ شی چې دی هغه پکې نیوټریشن دی. آج یہ ایک اور پروجیکٹ یہاں پر اس کا افتتاحی پروگرام ہو رہا ہے جو جب سے
गुज़श्ता साल चारसद्दा में सैलाब आया है और उस सैलाब के नतीजे में पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा बुरी तरह मुतासर हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो ज़िला चारसद्दा था। यहाँ पर ज़्यादातर जो यूनियन कौंसलें हैं, 23 से ज़्यादा यूनियन कौंसलें यहाँ पर मुतासर हुई और बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी के मनाज़िर हमने देखे। इस लिहाज से यकीनन वो तमाम लोग काबिल सताइश हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इमदादी काम में हिस्सा लिया, इस रिलीफ के काम में हिस्सा लिया। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है कि वो सैलाब आया था। गुज़श्ता साल जुलाई के आखिर में सैलाब आया था, अभी तक वो रिलीफ का सिलसिला जारी है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस टीम को, बीमा की इस टीम को, अल-खिदमत की इस टीम को, इस प्रोजेक्ट की टीम को कि उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया है और एक बुनियादी काम जो है वो यहाँ पर हम इस वक्त कर रहे हैं। ये 6 मंथ के फेज़ में इस प्रोजेक्ट को हमने 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले जो हिस्सा है वो है स्क्रीनिंग का। पहले फ़ेज़ में हमने 1890 पेशेंट को स्क्रीन आउट किया है। उनमें जो हमारे पास SFP, OTP और SFP PLW के जो क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं, ये वो क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई करने हैं, जो यूनिसेफ के प्रोटोकॉल हैं। तो उनके मुताबिक SFP के जो हमारे पास पेशेंट आए हैं वो 300 के लगभग आए हैं और जो हमारे पास OTP के पेशेंट आए हैं वो 31 के हैं। अब हमारा इनको पेशेंट्स को जो सप्लाइज़ हैं जो यूनिसेफ ने भिजवाई हैं वो सप्लाइज़ देने का हमारा सेकंड फ़ेज़, जिसको रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ कहते हैं, वो हमारा शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ में हम इन सारे जितने भी हमारे पास जो वल्नरेबल्स आए हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, उन सारे पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करने के बाद रजिस्टर करते हैं। इंशाल्लाह इनका 4 मंथ्स में इन सारे जो SFP हैं या OTP हैं, जितने भी हमारे पास SFP OTP के पेशेंट हैं, ये 4 फेज़ में कंप्लीट होंगे। 4 मंथ्स इनके लगेंगे। 4 मंथ्स में इंशाल्लाह ये सारे पेशेंट जो हैं रिकवर हो जाएंगे।